evening, students. Today we are going to start a new chapter. The chapter name is Features, Problems, and Policies of Agriculture. So, in this chapter, we are going to study about each and everything about the agriculture. That means what is the meaning of agriculture, what are the importance of agriculture, what were the problems of agriculture, and how we have come out from all these problems. That we are going to study each and everything in this chapter. Okay, so let it start with the agriculture. So exactly what is agriculture? Agriculture, this is an industry in which crops are grown by cultivating land and animals are reared. Okay, so in this aspect we can say that two type of activities are included in agriculture: agricultural activities and other activities. So we are going to divide it in two parts: primary activity and supplementary activity. अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो कि इंक्लूड करती है टू ग्रो फूड ग्रेन, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, cotton oil seeds, jute, sugar cane, pulses. All these are the primary activity. On the other hand, supplementary activity, that means instead of doing that, is you can say you can call it non-farming activities. So these activity included in its animal husbandry, poultry farm, and dairy farming, and there are so many others supplementary activities. So exactly, agriculture is the backbone of Indian economy. Economic development that is possible only through agricultural development. So firstly, I'm going to discuss the importance of agriculture sector in Indian economy. सो एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब क्या क्या जो है इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर की. तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडियन इकॉनमी. Okay, so what are the features over here? Just I'm discussing one by one all the importance of over here. Contribution to GDP. Okay, GDP you know very well because I have already discussed so many times what is GDP. GDP is the flow of goods and services. सो इट मीन्स अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. ओके, जहाँ पर जो है क्रॉप्स ग्रोन की जाती है. सो इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी. सो इट मीन्स इट रिलेट टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी? ओके, yes, there is a flow of goods and services, but कितना contribute करती है? Okay, so if I talk about the period of planning, so contribution of agriculture sector to GDP, it was 51 to 14.5. 1950-51 में it was 51%. In 2011-12 it was 14.2%, and 2014 it was 17.4%. Okay, that means if you will see over here that it's not a better index. ये दिस इज द कंट्रीब्यूशन इज नॉट वेरी गुड. बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीडीपी का कम होने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो दिस इज नॉट बेटर. This is exactly showing that the faster growth of secondary and tertiary sector of the economy. It means parallelly we are having the primary sector, secondary. In parallel to primary we are having the secondary sector and tertiary sector. So अगर एक की जीडीपी जो है वो कम हो रही है, ओके, सो वी कैनॉट से दैट इम्पॉर्टेंट नहीं है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बट द थिंग इज हेयर द अदर सेक्टर्स आर फास्टर इन गोइंग. ठीक है, ये ज़्यादा फास्टर जो है ग्रो कर रहे हैं. नंबर 2 इज सप्लाइंग ऑफ वेज गुड. एग्जैक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वेज गुड्स प्रोवाइड कर रहा है. वेज गुड्स मतलब क्या होता है? दैट मीन्स वीट, राइस, पल्सेस, बाजरा, ऑयल सीड्स, ऑल दीज आर द वेज गुड्स. सो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अबाउट 121 करोड़ पीपल को फूड और 51 करोड़ एनिमल्स को फूडर प्रोवाइड करता है. सो यू कैन सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. दैट मीन्स इतने सारे लोगों को खाना और इतने सारे एनिमल्स को जो है दैट इज फूडर, जो एनिमल्स का खाना होता है, फूडर जिसे बोलते हैं हम, वो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो ओवर 50% of population in India involved in agriculture sector. So you can get an idea from here कि हमारी जो population है वो 50% जो है वो agriculture पर dependent है. Okay, and
it is a principal source of subsistence for people, matlab for the survival of people. Mostly people are dependent on it. If I in 2018 about 48% of working population is engaged in agriculture and allied activity. And 1990, if I talk about in 1990, तो 65% people were dependent on it. So this is a good sign. अगर dependency कम होगी तो it means workload जो है वो कम हो रहा है. Okay. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. ओके, सो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट मीन्स फॉर इंडस्ट्री को इफ सपोज द इंडस्ट्री इज मेकिंग clothes. Okay, so from where the cotton will come, that will come from the agriculture sector. So agriculture sector जो है that is providing the cotton seeds to the manufacturing industry. Okay, sugar बनानी है तो उसके लिए sugar cane कहाँ से आएगा, that is also from the agriculture sector. So we are getting a lot of raw material for agriculture sector from the for the industry sector from the agriculture sector. Next one is contribution to international trade. Okay, so international trade मतलब export and import. So from the first chapter मैं आपको बता रही हूँ कि we were the exporter. Okay, and exporter is tea, tobacco, cashew nuts. Okay, so these are exactly when you are exporting anything. Okay, जब आप export करते हैं तो क्या हो रहा है कि जो foreign exchange है that is coming in India. ओके, सो इट्स अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी हाई लेवल पे है. ठीक है, द डिमांड ऑफ दीज गुड्स आर इंक्रीजिंग. ओके, सो बाय दिस वे एग्रीकल्चर इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो डेवलपिंग. Next is contribution to domestic trade, not only to the international trade but to the internal trade as well. It is very important. Okay, internal trade जो है that is also depend upon the sale and purchase of agriculture goods like food, grain, sugar, milk. Okay, so billion of people जो हैं वो huge amount spend करते हैं that is on purchase of farm products. So contribution to domestic trade. I hope this is clear to you. International trade means जहाँ हम foreign country से trade कर रहे हैं. Domestic means within our boundary. Okay, internal trade जिसे हम कहते हैं. Okay. Next is support to transport industry, not only to the industries but also to the transport industry. Okay, that is providing the raw material as well as helpful or support system for the transport industry. अब देखिए जो मटेरियल है that is from agriculture sector to industrial sector, वो कैसे जाएगा? थ्रू द ट्रांसपोर्ट. सो जितना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ग्रोथ करेगा उतना ट्रांसपोर्ट सेक्टर इम्प्रूव करेगा. ओके, सो बहुत सारे हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं दीज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोडवेज एंड रेलवेज. सो दिस इज अ बूस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज. Next is the wealth of nation. Okay, so our country will belong to agriculture sector, wealth of nation, because most of the people are dependent on agriculture, and it is also giving as we have discussed already कि GDP का भी जो share है वो आ रहा है अच्छा good amount from the agriculture sector. There as well there are so many, it's a source of living for the people. इम्पॉर्टेंस इन कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा राइज हो गई. ठीक है, तो लोगों की सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ गई. सोशल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, बिकॉज हम जो है एग्रीकल्चर जो है दैट इज़ केप्ट आवर आउटलुक एंड रिलीजियस सिक्योर. ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो एग्रीकल्चर कहाँ होती है, गाँव में होती है, विलेजेस में होती है. सो रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस विच रिफ्लेक्ट्स आवर culture. Okay, so ultimately it is not only important for industrial development, important for internal trade, foreign trade, employment, living, capital formation. So many importance are there. Next are the features of Indian agriculture. Okay, already we have discussed the features of Indian agriculture. That is, first feature is low productivity. When we are talking about the characteristics na, so characteristics could be positive or negative. So low productivity as I told you earlier also, that means output per hectare of land.
विच इज़ वेरी वेरी लो इन इंडिया. ओके, सो अगर हम बाकी सारी नेशन के साथ कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, ओके, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, वो बहुत ज़्यादा कम है. Number two, disguised unemployment. Another feature of Indian agriculture that we are facing the problem of disguised unemployment. Disguised unemployment means there is a land. Okay, suppose it's a 2 hectare of land. मान लीजिए 2 hectare land है. इनमें we need a 10 laborer. 10 लोगों की ज़रूरत है. But exactly 20 people or 20 labor is working. सो एग्जैक्टली प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी द सेम. अगर 200 क्विंटल जो है वो प्रोडक्शन हो रही है तो 10 लोग लगाइए, 20 लोग लगाइए, प्रोडक्शन इज द सेम. सो दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. जो बाकी के 10 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं बट इट सीम्स दे आर एम्प्लॉयड. ओके, सो हमारे यहाँ पर जो है एग्जैक्टली द पीपल आर बिलोंगिंग टू द जॉइंट फैमिली. ओके, और जॉइंट में उनके पास लैंड है तो एवरीबडी, ऑल द रिलेटिव्स आर वर्किंग टुगेदर. तो इस वजह से वो एक ही खेत पर काम करते हैं. ठीक है, सो दिस इज क्रिएटिंग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, dependence on rainfall. Yes, we people are mostly dependent on rainfall because irrigation facilities we are lacking of it. Okay, so 40% piece of land that has been bought under irrigation. Okay, so crop production जो है वो काफ़ी uncertain है. If there is a good rainfall that means good crop, bad rainfall means bad crop. So अल्टीमेटली जो आपकी रेनफॉल है उस पर प्रोडक्शन डिपेंड करती है. इफ रेनफॉल इज गुड, प्रोडक्शन इज गुड. अदरवाइज वी आर सपोज टू फेस द नेगेटिव इफेक्ट. नेक्स्ट इज subsistence farming. One of the feature of agriculture sector is that what we are doing, हम जो भी क्रॉप लगा रहे हैं वो हम अपने लिए लगा रहे हैं, मतलब subsistence farming कर रहे हैं. दैट दे आर फार्मर जो हैं दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अर्निंग प्रॉफिट. ओके, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने जो है हमारा जो आउटलुक है दे हैव चेंज. ठीक है, तो उसमें आउटलुक में क्या चेंज किया? इंडिगो क्रॉप. वैसे तो उन्होंने जो क्रॉप लगाई थी अपने यूज़ के लिए लगवाई थी, बट कहीं ना कहीं जो फार्मर का जो लुक है दैट इज़ कमर्शियल हो गया था. कमर्शियल दैट इज़ टू सेल इन द मार्केट so that they can earn profit. But जो subsistence farming है that is to fulfill the basic need of the family only. ठीक है, so subsistence farming से जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सेविंग्स नहीं होती. इनफैक्ट इट्स अ सोर्स ऑफ लिविंग बट इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. ओके, मॉडर्न इनपुट्स में क्या क्या आता है हमारा? केमिकल हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं. सो एग्जैक्टली फार्मर आर लैकिंग ऑफ ऑल दिस थिंग. सो अल्टीमेटली इफ वी आर नॉट हैविंग ऑल दिस थिंग, ओके, अगर फार्मर के पास ये इन मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, ओके, सो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे? स्लो प्रोडक्टिविटी एंड बैकवर्डनेस. नेक्स्ट इज स्मॉल होल्डिंग. स्मॉल होल्डिंग मतलब छोटा साइज है. किसका? लैंड का. द फार्मर इज हैविंग अ स्मॉल होल्डिंग. ठीक है, दैट इज. अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इफ़ द फार्मर इज हैविंग स्मॉल होल्डिंग तो वो एक तो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपके पास लैंड छोटा है तो उस पर जो नई टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ नहीं किया जा सकता. ओके, एंड नेक्स्ट इज फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रादर देन एंटरप्राइज प्रॉफिट. ठीक है, अगर स्मॉल होल्डिंग है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए करेगा. अपने सर्वाइवल मतलब अपने सब्सिस्टेंस के लिए करेगा. ठीक है, तो कमर्शियल आउटलुक जो है वो वहाँ पर इग्नोर होता है. ठीक है, सो स्मॉल होल्डिंग की ये प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज लैंडलॉर्ड टेनेट कन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, हमारे इंडिया एग्रीकल्चर की ये प्रॉब्लम है, ये फीचर्स है कि लैंडलॉर्ड जो है वो दैट इज क्रॉप जो है वो क्रॉप शेयर्स नॉट द कॉस्ट शेयर्स. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? कि हम क्रॉप शेयर तो कर रहे हैं कि ठीक है आपका लैंड जो है वो 1000 क्विंटल दे रहा है तो मुझे तो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट. लैंडलॉर्ड जमींदार, टेनेंट फार्मर. तो लैंडलॉर्ड कहता है कि मुझे 500 क्विंटल जो है आधी फसल चाहिए या रेवेन्यू चाहिए उसके ऊपर. ठीक है, बट ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट शेयर्स कि जो कॉस्ट लगी है वो
ठीक है, तो वो कौन बियर कर रहा है? वो अल्टीमेटली बियर किया जा रहा है बाय द फार्मर, और यू कैन से दैट टेनेंट, और यू कैन से दैट टिलर ऑफ द सॉइल. सो इसीलिए ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर की, दैट इज अ ड्रीम फॉर अस. Okay, because we are indulging in all these such kind of conflicts. नेक्स्ट इज बैकवर्ड टेक्नोलॉजी. ओके, क्योंकि हमारे पास स्मॉल साइज है फार्म लैंड का एंड पुअर फार्मिंग पॉपुलेशन है, सो अल्टीमेटली वी आर यूजिंग द बैकवर्ड टेक्नोलॉजी. ठीक है, जैसे ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर्स हैं, ये हम नहीं यूज़ कर रहे हैं. ओके, अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ही कम फार्मर्स हैं. ठीक है, रिच फार्मर आप कह सकते हो कि रिच फार्मर्स जो है दे आर यूजिंग इट. अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट द पुअर फार्मर, दे आर नॉट यूजिंग इट. So these all are the features of Indian agriculture. I hope this lecture is clear to you. Thank you so much, students.